मेरे प्रिय परमेश्वर के Oh, लोगों, once again we welcome each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus एक Christ. बार फिर से मसीह यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से आपका स्वागत And we करते हैं। firmly believe हम निश्चय विश्वास करते that हैं this is the day that the Lord has made, कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है and we will rejoice and be glad in और हम it. इसमें आनंदित और मग्न है। Hallelujah. हालेलुया। He is all powerful God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर He है, is all वो powerful. सर्वशक्तिमान है, Nothing is too hard for और him. कुछ भी उसके लिए कठिन नहीं। Nothing is too difficult ओ for मेरे him. परमेश्वर यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं। He spoke and things came into ओ existence. उसने कहा और चीजें प्रकट हो गई, वो अस्तित्व में आ गई। He is all वो powerful. सर्वशक्तिमान है, His word is powerful. उसका वचन सामर्थी है, His character is ओ powerful. उसका चरित्र सामर्थी है, His presence is उसकी powerful. हजूरी सामर्थी है। So be present in His presence. ओ उसकी उपस्थिति में बने रहे। And when you will do that, जब ऐसा करेंगे surely you will be touched. आप निश्चय परमेश्वर के द्वारा स्पर्श किए Surely जाएंगे, you will be touched. निश्चय आप प्रभु के द्वारा स्पर्श किए जाएंगे। The Lord has given me something to tell you this morning. आज सुबह प्रभु ने मुझसे कुछ कहा जो मैं आपसे कहना चाहता And I हूँ। want you to just pen down all this. मैं चाहता हूँ कि आप इसे लिख भी लें। Since beginning, whatever the Holy Spirit is sharing here, through us, for each one of us, कुछ पवित्र आत्मा प्रभु यहाँ पर कर रहे हैं, I want you all to just pen down मैं it. चाहता हूँ कि आप उसे लिखते भी जाएं। When you will pen down it, जब आप लिखते हैं you will remember it. आप उसे याद रखेंगे, When you will remember जब it, याद रखेंगे you will utter it. आप उसे बोलेंगे, And when you will utter it, आप बोलेंगे it will take place in your life. और ऐसा ही आपके जीवन में होगा। Because the same power that God the Father has, He has given you the same power in your tongue in Lord Jesus Christ. ओ परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में वही सामर्थ जो प्रभु के वचनों में है, आपके मुंह आपके वचन में डाली है। We are the sons and daughters of God the Father. हम तो जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां And हैं। when God spoke and things came into existence, जब परमेश्वर कहता है चीजें अस्तित्व में आती है, so we are His children. हम भी उसकी संतान है। Now His DNA in us. उसका डीएनए हम में है। So when we will speak something तो जब हम बोलेंगे कुछ for His glory, उसकी महिमा के लिए, it will take place. वो निश्चय ऐसा ही होगा, It will take place. वो ऐसा ही होगा। The defeated enemy doesn't want you and me to speak it out. और शैतान नहीं चाहता कि हम वचनों को उच्चारित करें, बोलें। Yes, it is true. और ये सच है। That's why many times when we see difficult situations before इसीलिए us, जब हम कठिन परिस्थितियों को अपने सामने देखते हैं, we keep our mouth shut. हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है, That is not us. और वो हम नहीं है। But the defeated enemy, he manipulates things like this before us and then we keep our mouth shut. हमारा वो शैतान ऐसे चीजों को करता है और वो चाहता है हमारे मुंह बंद रहे। But the Holy Bible teaches us to लेकिन speak. पवित्र शास्त्र बाइबल में बताती है कि कहो, बोलो। The Bible says, बाइबल बताती है because I believe and that's why I speak. क्योंकि मैंने विश्वास किया मैं बोला, I believe and that's why I speak. क्योंकि मैंने विश्वास किया मैं बोला। So if we believe something जब हम किसी बात पे विश्वास करते हैं which is found in the Holy Bible, जो कि वचन के अनुसार बाइबल में पाया जाता if है, we believe something that God has spoken this to me, अगर मैं जानता हूँ कि प्रभु ने मुझसे ये कहा है, we should open our mouth and we should speak it out louder. और इसीलिए आवश्यक है कि विश्वास के साथ मैं उन वचनों को अपनी जुबान से बोलूं। The moment the angel came before Mary जब मरियम के सामने स्वर्गदूत प्रकट हुआ and he gave her the message what he brought from the Lord, और जो प्रभु की ओर से संदेश आया था मरियम को सुनाया, and Mary heard it और all, मरियम ने उस सारे संदेश को सुना and स्वर्गदूत then what से। she said? और फिर मरियम ने क्या कहा? She said, उसने कहा, let it be done according to your word. उसने कहा कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। She spoke it out. उसने अपने मुंह से कहा, She spoke and she received. मरियम ने अपने मुंह से कहा और प्राप्त कर लिया। Yes, when we speak it out louder, और जब हम अपने जुबान को खोलकर मुंह से बोलते हैं, what the Lord has sent for us, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसके विषय we में, will receive it. हम उसे निश्चय प्राप्त करते हैं। Though at present we are not able to see it by our own eyes, हो सकता है आज
शायद उस बात को अपने जीवन में अपनी आंखों से आप ना देख पा रहे हो, Physically, we are not able to see things, शारीरिक रीति से हम नहीं देख पा रहे, but let's conceive it in our spirit. लेकिन आइए अपने घर में उस वचन को धारण करें, Let's conceive it in our spirit. अपनी आत्मा में हम उस वचन को धारण करें। And how we can conceive these things, God's good things in our spirit, और कैसे हम परमेश्वर की बातों और उसके वचनों को अपनी आत्मा में ले लेते हैं, when we speak it. जब हम उसे कहते रहते हैं, In fact, when we hear it, और वास्तविकता में जब हम सुनते and हैं, when we believe it, जब विश्वास कर लेते and हैं, when we utter और it, फिर जब हम कहते हैं, and we conceive it in our spirit. तब हम उसे आत्मा में बिल्कुल धारण कर लेते हैं। That's why it is very important for we believers to speak it out louder. इसलिए महत्वपूर्ण है कि हर एक विश्वासी अपने विश्वास का उच्चारण करे। Whenever it is said to say amen and praise the Lord, कहा जाता है कि आमीन बोलिए, प्रभु की स्तुति हो बोलिए। yes, we should speak it out. हमें मुंह बंद नहीं रखना, हमें जोर से बोलना है। Whenever man and woman of God says that receive this, कई परमेश्वर के लोग कहते हैं इसे प्राप्त करो, प्राप्त करो। and when you will see that yes, this is biblical, और आप जानते हैं कि हाँ ये तो वचन के अनुसार है, you should say आपको कहना है, yes, amen, I receive आपको it. कहना है हाँ आमीन, मैं इसे प्राप्त करती हूँ, प्राप्त करता हूँ। You are uttering this for your personal life. कि आप इसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अपना रहे हैं। And when you will do it, dear people और of जब आप ऐसा God, करेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, you will see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। You will conceive God's plan in your spirit. ओ आप परमेश्वर की उस योजना को अपनी आत्मा में धारण करेंगे, And surely very soon it will take place in your life. और निश्चय वैसा ही आपके जीवन में पूरा होगा। She used to say, the Bible says, उस स्त्री के विषय बाइबल कहती है वो कहा करती थी, the woman had the issue, of discharging the blood for more than 20 years. स्त्री जिसके पास लहू बहने की बीमारी थी 12 वर्षों से, The Bible says, बाइबल उसके विषय में कहती है she used to say, वो कहा करती थी, she used to speak out louder before everyone. वो हर किसी के सामने कहा करती थी। In spite of all her bad situations, उसकी परिस्थितियां तो बड़ी ही खराब थी, though his situations became more pathetic, और दिन ब दिन उसकी परिस्थितियां खराब होती जा रही but she थी, didn't give up. लेकिन उसने हियाव नहीं छोड़ा। I believe, मैं विश्वास करता though हूँ she was very sick, very ill, वो स्त्री बीमार थी, but then whenever she used to go, लेकिन जहाँ कहीं शायद वो जाती होगी, she might have uttered those word of faith. मैं सोचता हूँ कि अपने विश्वास के वचन को वो उच्चारित करती होगी, कहती होगी, Once if I will touch the hem of his garment, कि एक बार अगर उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी, oh, once if I will touch the hem of his garment, एक बार अगर उसके वस्त्र के छोर ही को छू लूंगी, I will be whole. मैं चंगी हो I will जाऊंगी, be whole. मैं चंगी हो जाऊंगी। And exactly the same thing took place in her life. और वैसा ही उसके जीवन में बिल्कुल वैसा हो गया। When we speak, जब हम कहते हैं, we bring our miracle near to us. हम उस चमत्कार आश्चर्य कर्म को अपने निकट ले आते Yes, हैं। you have heard me right. आपने सही सुना, When we speak, जब हम बोलते हैं, कहते हैं, we bring our miracle near to us. हम उस आश्चर्य कर्म को अपने निकट खींचते हैं। She used to say, the Bible reports. और बताती है कि वो स्त्री ऐसा कहा करती थी। And then one blessed day, एक धन्य दिन Jesus came. प्रभु यीशु आ गए, Jesus came into his village. यीशु मसीह उस स्त्री के नगर गांव में आ गए, And she exactly did what she used to और utter. जैसा कि वो स्त्री कहा करती थी उसने वैसा ही कार्य किया। And we know rest of the incident that took place. आगे की घटना हम जानते हैं कि क्या हुआ। She drew the power from Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ को अपनी ओर खींच लिया, And she made whole. और वो चंगी हो गई। This is the power of speaking. ये है आपके अद्भुत उच्चारण करने की सामर्थ। If you believe, अगर आप विश्वास करेंगे, and with that faith you will speak, और जब आप विश्वास करेंगे, अंगीकार करेंगे, surely it will take place in your life. वैसा ही आपके जीवन में निश्चित जानिए कि होगा। The problem is,
यहाँ समस्या ये है, many of us we hear, हम में से बहुत से लोग सुनते हैं, many of us even sometimes even we try to meditate on it, कई बार हम उसमें मनन भी करने का प्रयास करते हैं, but we don't declare it out louder. लेकिन हम उस वचन, उस विश्वास को अंगीकार नहीं करते, Because we think क्योंकि हम सोचते हैं maybe other people they think that I am fool. तो दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि मैं मूर्ख हूँ। But in order to attract God's attraction towards me, लेकिन परमेश्वर के ध्यान को आपकी ओर खींचने के लिए I should speak. ये अच्छा है कि आप अंगीकार करें। I should speak. मुझे अंगीकार करना है In order to attract God's attraction towards me, अगर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आकर्षण मेरे प्रति हो, I should speak out louder. तो मुझे अपने विश्वास को अंगीकार करना है। The more I will speak out louder, जितना अधिक मैं अपने अंगीकार को कहता हूँ, confessing the faith words by my own mouth, अपने विश्वास के वचन को अपने मुंह से मैं उच्चारित करता I हूँ, am drawing the miracle for me. ओ मैं उस आश्चर्य कर्म को अपनी ओर खींचता हूँ, I am drawing the miracle of God the Father towards उस me. परमेश्वर पिता के आश्चर्य कर्म को मैं अपनी ओर खींचता हूँ। That's why it is must for us to speak. जरूरी है कि हम अंगीकार करते रहें। That blind Bartimaeus, याद करिए उस अंधे बर्तिमाई को, he shouted, वो चिल्लाया, "Oh son of David, have mercy on हे me." दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। I don't know how many times he called or shouted, ओ कितना अधिक वो चिल्लाया होगा, but he understood one thing. वो एक बात जानता The था, more I will speak, जितना अधिक मैं कहूंगा, the more I will draw the attention of Lord Jesus Christ towards me. मैं यीशु मसीह की दृष्टि उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। And the Bible says बाइबल बताती है that Lord Jesus Christ stood there. और यीशु मसीह वहां उसके लिए रुक गए। The creator of heavens and the earth, he stood there. स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। Not only that, ना केवल इतना, then Jesus asked him, प्रभु यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमाई से पूछा, "What do you want me to do for you?" क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? How beautiful it is. और ये कितनी खूबसूरत बात है। Creator of heavens and the earth, he stands before you and asking, "Tell me, what do you want me to do for ओ, कि वो you?" सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे ठहर कर पूछे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? When it will happen, जब ऐसा हो, when you will speak out ओ, louder, तब आप बोलने से चूकिए मत। when it will happen, तब होगा ऐसा when you will start speaking the faith words, जब आप विश्वास के वचनों का अंगीकार करेंगे, अपनी जुबान से बोलेंगे, the defeated enemy will tell you, "Hey, don't shout out शैतान louder." आपको बोलेगा चुप रहे बोल मत। Oh, maybe you may seem very stupid before people, हो सकता है मनुष्यों की दृष्टि में आप मूर्ख जान पड़े, but then don't stop. लेकिन फिर भी रुकिए मत, You are not calling any mere man. क्योंकि आप किसी तुच्छ मनुष्य को नहीं पुकार रहे, You are calling the Almighty God. आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारते If हैं। you are lacking something, अगर आपको किसी बात की घटी है, you're lacking wisdom, अगर आपको बुद्धि की घटी है, if you need healing, अगर आप चंगाई चाहते हैं, if you need salvation, अगर आप उद्धार चाहते हैं, if you need deliverance, अगर आप छुटकारा चाहते if you हैं, need a financial breakthrough, अगर एक आर्थिक आप छुटकारा चाहते हैं, if you need peace, अगर आप शांति चाहते हैं, if you need a supernatural blessings and protection of और God, परमेश्वर की उस अद्भुत आशीष और सुरक्षा को चाहते हैं, speak it out louder. ओ परमेश्वर के वचन को अंगीकार करिए, Speak it out louder, the word of God by faith, ओ विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करिए। that he has become poor so that I can become rich. मेरा यीशु गरीब बना, उस क्रूस के ऊपर कंगाल बना कि मैं धनवान हो गया। He lives in me. प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, The one who lives in me is more powerful than the one who lives in this world. और जो मुझ में रहता है वो उससे कहीं अधिक सामर्थ्य है जो संसार में है। Oh, keep on confessing all these scriptures by mouth. अपने मुंह से हर एक वचनों का अंगीकार करते रहे। And I want to tell और you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you by doing this, you are drawing the attention of God towards you. और ऐसा करके परमेश्वर के ध्यान को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। And when it will take place, और जब ऐसा होता है, the supernatural
miracle of God you will see. तब आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Such a blessed moment when we utter, things by our ये mouth. कितना आशीषित समय है जब वचन को अपने जुबान से अंगीकार करें। And God pleases this, और इस बात को परमेश्वर पसंद करते हैं। God loves to hear from it. परमेश्वर आपके मुंह से उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं को सुनना चाहते हैं। And one more thing that God wants to hear from और you. एक और बात है जो प्रभु पसंद करते हैं सुनना। God wants to hear from you the words of thanksgiving. ओ परमेश्वर को भाता है कि जब हम उसको धन्यवाद का बलिदान अपने मुंह से चढ़ाएं। When we open our mouth wide and say that, Father God, thank you for everything. ओ जब अपने मुंह को हम खोलते हैं और अपनी जुबान से कहते हैं ऊंचे स्वर में, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। In fact, thank Him for everything. सारी बातों के लिए अपनी जुबान को खोलकर प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। If you will start making the list of thanksgiving, अगर आप धन्यवाद की सूची बनाएं, it will be endless. ओ वो तो अनगिनत होगी, इसका कोई अंत नहीं। Because our Lord God the Father in Christ Jesus, He has done so many good things for us. परमेश्वर हमारे जीवन में अनगिनत भलाइयों को करते आ रहे हैं। So we have so many things, for which we should thank God. हमारे जीवन में कितनी बातें हैं जिनके लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। The Bible says in Psalms chapter 50. ओ भजन संहिता की किताब उसका अध्याय 50 में कलाम कहता है। In fact, you can read Psalms chapter 54. मैं चाहता हूँ कि आप भजन संहिता 54 भी पढ़ें। Psalms chapter 54 verse 6. आइए हम पहले भजन संहिता 54 उसका वचन 6 पढ़ेंगे। And here the scripture says. और देखिए कलाम क्या कहता है। Psalms chapter 54 verse 6. आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 54 उसका वचन 6। And here the scripture says like और this. कलाम में यूं लिखा है, I will give thanks to your name, O Lord, for it is good. हालेलुया। कलाम कहता है क्योंकि Glory to God। 54 वचन 6, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा, For, O Lord, for it is good. क्योंकि ये उत्तम बात है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible says कलाम कहता है when we give God the thanks offering, जब हम धन्यवाद की बलिदान को परमेश्वर के सामने चढ़ाते opening हैं, our mouth, तो जुबान को खोलते हैं, it is good. ओ ये तो उत्तम बात है, It is good. ये तो उत्तम भली बात है। The psalmist is writing here, वचन का लिखने वाला कहता है, I will give thanks to your name, O Lord. ओ परमेश्वर मैं आपके नाम को धन्यवाद दूंगा। How sweet name, the Lord has. परमेश्वर का नाम कितना अद्भुत है। How sweet His name is. उसका नाम कितना मीठा है। How beautiful His name कितना is. खूबसूरत है। How powerful His name कितना is. सामर्थी है। So what we should तो do? हमें क्या करना है? We should give Him all the glory. Thank Him for अपने everything. खुदावन को सारी बातों में हमें धन्यवाद का बलिदान और स्वेच्छा बलि और उसकी महिमा करनी है। Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for this धन्यवाद, day. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आज के दिन Oh, के लिए। thank you, Lord, for my family. मेरे परिवार के लिए प्रभु धन्यवाद। Thank you, Lord, for the work that you have been doing through my life, in ओ my प्रभु life. धन्यवाद मेरे जीवन में जो बड़े काम आप कर रहे हैं प्रभु, मेरे द्वारा जो आप कर रहे हैं। Oh, thank you, Lord, for Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए खुदाबाप आपका कोटि कोटि धन्यवाद। Thank you, Father God, for loving me. ओ प्रभु मुझसे प्रेम रखने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for protecting me. मुझे सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for providing for me. प्रभु मेरे लिए हर एक बात को पूर्ति करने के लिए Oh, धन्यवाद। thank you, thank you, thank you, Lord, thank you, धन्यवाद Lord. यीशु, धन्यवाद मेरे प्रभु। When we say this, जब हम यूं कहते रहते हैं, God pleases. परमेश्वर को ये भाता है। God the Father pleases. ओ खुदाबाप को ये भाता है, Because He's our Heavenly वो Father. आपका मेरा स्वर्गीय प्रेमी पिता है। We are His हम children. उसकी संतान हैं। So as a children, when we thank Him, और जब संतान होकर हम खुदाबाप का पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते He हैं, loves to hear it. ओ उसे ये सुनना भाता है, He loves to hear उसे it. सुनना भाता है। The Bible says, बताती है। Psalms chapter 50, आइए जाएंगे भजन संहिता अध्याय 50, verses 14 and 15. आइए पढ़ेंगे उसका वचन 14 और 15। In fact, 14 we are going to read first. आइए हम 14वें वचन को पहले पढ़ेंगे। Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform
your woes to the Lord. हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यहाँ पे कहता है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। Hallelujah. Hallelujah. The Bible is saying, वो कलाम बाइबल यहाँ पे बताती है offer to God a sacrifice of thanksgiving. ओ परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। Offer to God, offer to God, offer to परमेश्वर को God. चढ़ाना है धन्यवाद का बलिदान। Offer to God a sacrifice of thanksgiving. परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ And perform your vows to the Lord. और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। And the Bible says, और आगे कलाम 15 में लिखा है and then call upon me in the days of trouble. और संकट के दिन मुझे पुकार। And then call upon me in the days of trouble. और परमेश्वर कहते हैं संकट के दिन मुझे पुकार, And I will deliver you and you shall glorify me. मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। See the power of thanksgiving. देखिए धन्यवाद के बलिदान की जो सामर्थ See है, the power of thanksgiving. धन्यवाद चढ़ाने की जो सामर्थ है, See what power comes when we, thank the Lord God Almighty. जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं What happens? क्या होता है? He delivers us वो हमें छुड़ाता है। when we call Him in the days of trouble. जब संकट में हम उसे पुकारते हैं, Sometime कई बार we are not thanking God for anything. हम धन्यवाद नहीं देते किसी बात के लिए भी परमेश्वर का। We don't learn to thank God for anything. हम सीख नहीं पाते कि धन्यवाद कैसे दे परमेश्वर का। But when difficult situation comes, लेकिन जब संकट या कठिन परिस्थिति हो, then we call God, please help फिर हम us. परमेश्वर को पुकारते कि प्रभु मदद कर, मदद कर। But the Bible ये says, कलाम बताता है if you continually read this 14 and 15, अगर आप पढ़ेंगे 14-15 को एक साथ, the Bible says, बाइबल बताती है offer to God a sacrifice of thanksgiving ओ परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, and perform your vows to the के Lord, लिए अपनी मन्नतें पूरी कर and then call me in the days of trouble. और संकट में मुझे पुकार। The Lord says, परमेश्वर कहते हैं first you offer the word of thanksgiving to me. ओ परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, First you learn to thank me, सीखो परमेश्वर का धन्यवाद करना, and then call me in the days of फिर trouble, तुम मुझे पुकारोगे and then see how I will deliver ओ you. तुम देखोगे कि मैं तुम्हें कैसे छुटकारा दूंगा। The Lord says, and you'll see how I will deliver ओ you. तुम देखोगे कि परमेश्वर कैसे छुटकारा देगा। Paul and Silas, यहाँ पौलुस और सिलास when they were behind the bar, जब वो कैद खाने जेल खाने में थे for Christ's sake, प्रभु यीशु मसीह के लिए, all chained up, their hands and legs were chained up, के हाथ और पैर तो जंजीरों से बांधे गए थे, and they were beaten up, उन्हें तो पीटा गया था, they were in pain, वो दर्द तकलीफ में थे। but what they were doing in midnight, पौलुस सिलास उस मध्य रात्रि क्या कर रहे थे? they were thanking God, they were praising God, they were worshiping God. उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान, स्तुति, आराधना चढ़ा रहे थे। And at home you can read Acts chapter 16 जब अपने घर में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 16 and verses 25 ahead, और वचन 25 से आगे पढ़ेंगे, you will get to know, आप इस बात को जानेंगे because in their pathetic situations they called upon the वो Lord. अपनी कठिन संकट की परिस्थिति में उन्हें परमेश्वर को पुकारा Supernatural power came. और स्वर्ग से अलौकिक सामर्थ उतरी The angel of the Lord came और स्वर्गदूत उतर आए and they delivered them. और उन्हें छुटकारा दिया। Supernaturally their chains were अलौकिक untied. अलौकिक रीति से उनकी जंजीरें टूट गई। Hallelujah. हालेलुया। I can give you so many examples where when the people of God they thank the Lord wholeheartedly, what बाइबल में happened? अनगिनत इस बात के उदाहरण है कि जब परमेश्वर के लोग उसका धन्यवाद देते हैं तो कैसे सामर्थ उतरती है। So it is good to thank the Lord. The इसलिए Bible ये भला है says. कि हम परमेश्वर को नित्य धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। Yes, dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, it is good to thank the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देना कितना भला है, It is good thing. कितना भला है, कितनी भली और उत्तम बात है। And when we thank the Lord, और जब खुदावन का धन्यवाद देते हैं pleases. वो उसे ये भाता है, And when He pleases, और जब उसे ये पसंद आता है, वो प्रसन्न होता and है, when we call Him in the days of और trouble, जब कभी हम उसे बुलाते हैं संकट और सकेती में, He comes. वो आता है, He comes. वो आता है, He comes to deliver us. वो आता है, आपको छुटकारा देता है। That's why during your good times, इसलिए आपकी भली परिस्थितियों में learn to thank the Lord. धन्यवाद देना सीख लें। When everything is good around you, और जब सब कुछ ठीक है, अच्छा है, when everything is pleasant before you, और हर परिस्थिति में जहाँ पर भी आप हो, just thank the Lord. प्रभु को धन्यवाद दें, Just thank the Lord. प्रभु को धन्यवाद देना शुरू From करें। morning
morning and afternoon and evening and midnight. Just thank the Lord. सुबह और दोपहर और शाम और रात दिन रात उसका धन्यवाद दे, So that in days of trouble, ताकि कभी अगर संकट हो, when you will call God the Father, जब कभी हम परमेश्वर को बुलाते हैं oh Father, help कि me, खुदा बाप मेरी मदद करे, He will deliver you. वो निश्चय आएगा और छुटकारा देगा। And the Bible says, मेरी बाइबल बताती when He है will deliver जब you, प्रभु आपको छुटकारा दे, you shall glorify आगे Him. फिर से उसकी महिमा करे और अधिक धन्यवाद का So बलिदान चढ़ाएं। this is the cycle that we need to तो do. इसी प्रकार का ये चक्र चलता रहता We है। need to thank the Lord प्रभु को धन्यवाद देते रहे in our good times, हर समय when time becomes troubleful, और हर परिस्थितियों के दरमियान जब धन्यवाद देते हैं और अगर कभी अगर संकट भी आ जाए, when we shout and call God the Father, please help कि me, जब हम प्रभु को पुकारे कि प्रभु मदद करिए, He comes, वो निश्चय आएगा, delivers, वो छुटकारा देगा, deliver us, छुटकारा देगा and again we glorify. और फिर उसकी महिमा करे। Hallelujah. Hallelujah. Dear people of मेरे God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, that's how we should live our Christian ओ life. अपने विश्वासी जीवन को हमें ऐसे ही जीना That's है। how we should live the life that God has given to ओ us. जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए जिए। I firmly believe मैं निश्चय विश्वास करता हूँ that these scriptures are a cause to bless you. आज के इन वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। This is the time अब ये समय है and we are going to pray जब हम दुआ करेंगे। and then we will bless you. हालेलुया। प्रभु शुक्र तो रब्बा, थैंक यू फादर, वी लव यू, वर्शिप वी प्रेज यू। पिता परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल। थैंक यू लॉर्ड फॉर रिमाइंडिंग अस धन्यवाद प्रभु जी, आपने एक बार फिर से हमें इस बात को स्मरण दिलाया हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू थैंक यू लॉर्ड फॉरएवर। कि पिता परमेश्वर कितना ही उत्तम है, भला है आपको हमेशा धन्यवाद देना। थैंक यू लॉर्ड, आवर हार्ट्स आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। प्रभु जी, हमारा हृदय धन्यवाद के साथ में भरा हुआ है। लॉर्ड गिव each and every one of us प्रभु जी, हमें से प्रत्येक को आप ऐसा अनुग्रह the दीजिए। spirit of thanksgiving, प्रभु जी, धन्यवाद की आत्मा हमारे भीतर उंडेल that we should always give thanks to you in every situation of our life। कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद दें। Lord, we should never complain and grumble, प्रभु जी, कभी भी हम शिकायत ना करें, कुड़कुड़ाए ना, but we should know it for sure परंतु निश्चित तौर पे इस बात को हम जान जाएं everything will work good for us कि हर बात हमारे लिए मिलकर भलाई को ही उत्पन्न because करेगी, our Father God is a good God। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर, Nothing can harm us, कुछ भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, nothing can harm us, कुछ भी हमें नुकसान नहीं no पहुंचा सकता, evil can touch us, कोई भी दुष्टता हमें छू नहीं सकता, no different enemy can touch us, कोई भी हारा हुआ शत्रु हमें छू नहीं and सकता, our beloved people। और हमारे प्रिय लोगों को भी नहीं छू सकता। God, you bless them all, प्रभु जी, हर एक को आप आशीष दीजिए, be with them, Lord। इनके साथ से चलिएगा। Lord, our Father, ओ प्रभु we जी, give you all glory, हम आपको honor and सारी महिमा praise। आदर जलाल दें, Jesus' mighty name, यीशु के नाम से प्रार्थना। Amen। Amen. Now receive the blessings of God. आइए हम परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करें। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता राजा में आशीष दे, हमारी रक्षा करें। May the Lord make His face to shine upon you राजा अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, and be gracious to हम पर you. अनुग्रह करें। May the Lord lift up His countenance upon परमेश्वर पिता you अपने मुख हमारी ओर करें and give you His और हमें peace. शांति तसल्ली दे। In Jesus' name. परमेश्वर नासरी के नाम से Amen. Amen।